Hello everyone, welcome to the chemistry solutions of ANTS CPT1. So let's get started. So पहला क्वेश्चन है 51. इसमें पूछा है how many water molecules are there in one drop of water? Volume is equal to 0.0018 ml at room temperature. So हमें drop of water का वॉल्यूम दिया है 0.0018 ml और डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर हम मानते हैं 1 ग्राम पर ml. सो हमारे पास वॉल्यूम है एंड डेंसिटी भी है, सो वी कैन फाइंड द मास. सो वेट ऑफ द वाटर ड्रॉप, दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो ये हो जाएगा 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम है 0.0018 ml. दिस इज इक्वल टू 0.0018 ग्राम. सो दिस इज द मास ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे मास बाय मोलर मास. सो मास है 0.0018 ग्राम and molar mass of water is 18 gram per mole. So this gives us 10 to the power minus 4 mole. So H2O के हैं 10 to the power minus 4 mole. So number of molecules, total number of molecules हो जाएंगे number of moles into Avogadro's number, क्योंकि एक मोल में total number of molecules होते हैं into Na. Avogadro's number, this is equal to 10 to the power minus 4 into 6.023 into 10 to the power 23. And this is equal to 6.023 into 10 to the power 19. So our answer will be option D. ये है total number of water molecules. Next question is 52. इसमें पूछा है the oxidation number of vanadium in CS4NaHV10O28 is. तो हमें एक compound दिया है and we know the sum of oxidation numbers of all the atoms is equal to the total charge. अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 0 है. इसका मतलब द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स विल बी इक्वल टू 0. तो सीजियम के 4 एटम्स हैं इनटू, और सीजियम एक एल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, प्लस सोडियम का एक एटम है और सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? +1, क्योंकि ये भी एक एल्कली मेटल है, प्लस हाइड्रोजन का एक एटम है, सो 1 इंटू, एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वी टेक एज +1, प्लस वेनेडियम के 10 एटम्स हैं, सो 10, और वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें, उसे मान लेते हैं x, प्लस ऑक्सीजन के 28 एटम्स हैं, 28 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हम लेते हैं -2, एंड दिस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज 0. सो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से मिलेगा हमें x इज इक्वल टू +5. इसका मतलब the oxidation number of vanadium is +5. So the answer is option B. Next question is 53. इसमें पूछा है the solubility of AgCl in 0.2 molar NaCl is, और AgCl का KSP दिया है 1.8 into 10 to the power minus 10. So AgCl एक sparingly soluble salt है, इसकी solubility find करनी है in the presence of NaCl, जिसके अंदर present है Cl minus ion. तो ये question है solubility in the presence of common ion का. So NaCl एक highly soluble salt है और ये completely dissociate करेगा to give Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. तो इसकी concentration 0.2 molar है, it will dissociate, तो it will give Na plus 0.2 and Cl minus की concentration 0.2 molar. और जब AgCl dissociate करेगा तो एक reversible reaction होगी. AgCl will give Ag plus aqueous प्लस Cl माइनस aqueous. तो AgCl की solubility मान लेते हैं S. सो Ag प्लस की concentration होगी S और Cl माइनस की concentration भी है S. लेकिन Cl माइनस की concentration पहले से 0.2 थी, तो it becomes S plus 0.2. ये है concentration of Cl माइनस ion. लेकिन solubility AgCl की बहुत कम होगी और common ion की presence में तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी. इसका मतलब S को हम ignore कर सकते हैं in comparison to 0.2. So this is approximately equal to 0.2. So Cl minus is approximately equal to 0.2. Now we can write the expression of KSP of AgCl. This will be equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. अब question में KSP of AgCl हमें दिया है 1.8 into 10 to the power minus 10. This is equal to, और Ag plus की concentration है equal to solubility S, एंड Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2 मोलर. सो यहाँ से हमें मिलेगा solubility S इज इक्वल टू
1.8 into 10 to the power minus 10 divided by 0.2, and this gives us solubility as equal to 9 into 10 to the power minus 10 molar. So given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54. इसमें पूछा है when white phosphorus reacts with caustic soda the products are PS3 and NaH2PO2. this reaction is an example of, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है. तो white phosphorus है P4 और जब ये रिएक्ट करेगा विद caustic soda जो है NaOH, तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं PS3 फॉस्फीन और साथ में बन रहा है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2. सो रिएक्टेंट P4 इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, फॉस्फीन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है -3 एंड NaH2PO2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +1. सो वी कैन सी दैट एलिमेंट फॉस्फोरस रिएक्टेंट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ये 0 से गया -3, यहाँ पे हुआ इसका रिडक्शन, और 0 से ये गया है +1 में जहाँ पे हुआ इसका ऑक्सीडेशन. तो सेम एलिमेंट का हुआ रिडक्शन और सेम एलिमेंट का हुआ ऑक्सीडेशन, एंड सच रिएक्शन वी नो इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, डिसप्रपोर्शनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55. इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बोथ एज एन ऑक्सीडेंट एंड अ रिडक्टेंट. और हमें 5 कंपाउंड्स दिए हैं, तो हमें पता है वो कंपाउंड जिसमें एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इट कैन बिहेव बोथ एज ऑक्सीडेंट एंड अ रिडक्टेंट. तो पहला कंपाउंड हमें दिया है HNO2 विच इज नाइट्रस एसिड. इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर रेंज है वो है -3 to +5. सो +3 एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो इट कैन बिहेव बोथ एज ऑक्सीडेंट एंड अ रिडक्टेंट. सो HNO3 हमारे आंसर का पार्ट होगा. इसके बाद हमें दिया है नंबर 2 नाइट्रिक एसिड HNO3. इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5 जो इसका हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है. इसका मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसका मतलब इट कैन नॉट बिहेव एज रिडक्टेंट. तो इसका मतलब HNO3 हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा. इसके बाद इन द थर्ड ऑप्शन वी हैव SO2 सल्फर डाइऑक्साइड. इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 एंड सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज है वो है -2 to +6. तो ये भी एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट होगा. इसके बाद द फोर्थ कंपाउंड इज H2O2 विच इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और ऑक्सीजन का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है -2 एंड हाईएस्ट पॉसिबल है +2. इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट होगा. एंड इसके बाद नंबर 5 वी हैव H2S. इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 जो कि सल्फर का लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा. तो हमारे आंसर के पार्ट होंगे 1, 3 एंड 4. सो 1, 3 एंड 4 ये कंपाउंड्स हमारे आंसर का पार्ट होंगे. तो ऑप्शंस देखते हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 4. A is the answer. Next question is 56. इसमें पूछा है which of the following ions has the smallest ionic radius, और हमें 4 ions given है. तो अगर हम ions को ऑब्जर्व करें, ये चारों ions हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक ions. इन सभी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड वी नो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ions हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस. तो जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका आयनिक रेडियस स्मॉलेस्ट होगा. तो गिवन ऑप्शंस में हाईएस्ट चार्ज है एल्यूमिनियम पे विच इज़ +3, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी एल्यूमिनियम 3+. इसका साइज होगा स्मॉलेस्ट. सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57. इसमें पूछा है विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और हमें ऑप्शंस में नोबल गैसेस गिवन है. सो वी नो noble gases are present in group number 18 और group number 18 के elements है helium, neon, argon, krypton, xenon and then we have radon. So we know as we go down the group atomic size बढ़ेगा, और जब atomic size बढ़ेगा so outer electron को निकालना easy होगा because it will be farther away from the nucleus. So as we go down the group ionization energy
डिक्रीजेज, सो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा इन एलिमेंट्स के अंदर जेनॉन का। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। इसमें पूछा है विच पीरियड कंटेन्स द एक्टिनाइट्स। सो अगर हमें पीरियोडिक टेबल याद है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो वी नो पीरियोडिक टेबल के लास्ट पीरियड विच इज पीरियड नंबर 7, इसमें एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 89, इसके बाद में 14 एलिमेंट्स आते हैं विच आर इन द एफ ब्लॉक। वो है थोरियम 90 टू लोरेंशियम एटॉमिक नंबर 103, एंड दीज 14 एलिमेंट्स आर नोन एज एक्टिनाइट्स। So actinides are in period number 7, so the answer will be option C. Next question is 59. इसमें पूछा है number of angular nodes for 4d orbital is. So angular nodes का formula होता है equal to azimuthal quantum number L, और d orbital के लिए azimuthal quantum number L की वैल्यू होती है 2। इसका मतलब number of angular nodes for 4d orbital will be 2. Answer is option C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। इसमें पूछा है टू एटम्स आर सेट टू बी आइसोबार्स इफ, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। तो ये एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और आइसोबार्स की डेफिनेशन है एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो उन एटम्स को बोलते हैं हम आइसोबार्स, और मास नंबर का मतलब है द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये बराबर होने चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये डिफरेंट होने चाहिए। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। इसमें पूछा है द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकेंड शेल है तो ऑर्बिट नंबर है n इक्वल टू 2, और हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर z होता है 1, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर एंड n इज द ऑर्बिट नंबर। सो ये बन जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। एटॉमिक नंबर z की वैल्यू है 1 और ऑर्बिट नंबर या शेल है सेकेंड, सो n इक्वल टू 2, और ये बन जाएगा 1.09 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सो गिवन ऑप्शंस में द नियरेस्ट वैल्यू इज ऑप्शन डी, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी 1.094 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। इसमें पूछा है अ सॉल्यूशन हैज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.0005 m, इट्स pOH इज। सो हमें H+ कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 m। सो pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H+, सो दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर -4। सो यहाँ से मिलेगा हमें pH इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग 5 विच इज इक्वल टू 4 माइनस, एंड लॉग 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू वी कैन टेक एज 0.699, दिस इज इक्वल टू 3.301। सो ये है pH, और हमें पूछा है pOH, एंड वी नो pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। इसका मतलब pOH इज इक्वल टू 14 माइनस pH, और pH का वैल्यू है 3.301, एंड दिस इज इक्वल टू 10.699। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। इसमें पूछा है द pH of a 0.1 molar aqueous solution of a weak acid HA is 3. What is its degree of dissociation? So weak acid HA का concentration दिया है 0.1 molar, और हमें solution का pH दिया है 3। pH 3 है, इसका मतलब माइनस लॉग ऑफ H+ concentration, this value is equal to 3, और इसका मतलब dissociation के बाद में जो H+ concentration है वो है 10 to the power -3 molar। अब weak acid HA dissociate करता है as it gives H+ aqueous plus A-। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C, यह है 0 और यह है 0, और डिसोसिएशन के बाद में ये बन जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये बन जाएगा C अल्फा, और ये बन जाएगा C अल्फा। तो आफ्टर डिसोसिएशन H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा, एंड C अल्फा जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू 10 to the power -3।
इसका मतलब C अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 और कॉन्सेंट्रेशन C हमें दिया है 0.1, सो यहाँ से मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 बाई C विच इज 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.01। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हो जाएगा अल्फा इंटू 100 विच इज 0.01 इंटू 100 विच इज 1। तो वी कैन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1%। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। इसमें पूछा है द नंबर ऑफ H प्लस आयंस present in 1 cubic centimeter of a solution whose pH is 10 is। तो हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इन लीटर्स इट इज 10 टू द पावर -3 लीटर, ये है वॉल्यूम, और हमें pH दिया है 10। इसका मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -10 मोलर। तो हमारे पास H प्लस की मोलारिटी है और हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है। इसका मतलब मोल्स ऑफ H प्लस आयंस या मोल्स ऑफ H प्लस हो जाएंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। सो मोलारिटी है 10 टू द पावर -10 और वॉल्यूम है 10 टू द पावर -3, दिस इज 10 टू द पावर -13 मोल। सो H प्लस के मोल्स है 10 टू द पावर -13। सो नंबर ऑफ H प्लस आयंस ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स 10 टू द पावर -13 इनटू एवोगैड्रोस नंबर Na। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -13 एंड Na इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड दिस इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 10. So these are the total number of H plus ions. So the answer will be option C. Next question is 65. इसमें पूछा है the solubility of A2X3 is Y mole per cubic decimeter. Its solubility product is। So A2X3 salt जब पानी में soluble होगा it will dissociate as, दो एटम्स आएंगे A के, so 2A 3 प्लस 3 एटम्स हैं X के, सो 3X और इस पे चार्ज हो जाएगा 2 माइनस। सो और क्वेश्चन में दिया है इसका सोल्यूबिलिटी है Y। तो अगर इसका सोल्यूबिलिटी Y है तो इन द सॉल्यूशन A3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 2Y एंड इसका कोफिशिएंट 3 है, इट बिकम्स 3Y। तो अगर हम KSP या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखें, सो KSP का एक्सप्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 प्लस एट इक्विलिब्रियम टू द पावर 2 into concentration of X 2 minus at equilibrium to the power coefficient of X which is 3। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, this becomes KSP is equal to A3 plus की concentration है 2Y, this becomes 2Y का square into and X2 minus की concentration है 3Y, so 3Y का cube। So this is equal to 4 into Y square into 3 cube है 27 into Y cube and this is 108 y to the power 5. This is KSP. So answer हो जाएगा option D. Next question is 66. इसमें पूछा है Kp has the value of 10 to the power -6 and 10 to the power -4 at 298 Kelvin and 323 Kelvin respectively। हमें ये रिएक्शन दिया है और इस रिएक्शन के लिए हमें निकालना है डेल्टा H0। सो इनिशियल टेम्परेचर T1 लेट्स से 298 केल्विन, इसके लिए हमें जो Kp का वैल्यू दिया है Kp1 बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू दी है 10 टू द पावर -6 और जो न्यू टेम्परेचर T2 है विच इज़ 323 केल्विन, इसके लिए हमें Kp2 का वैल्यू दिया है 10 टू द पावर -4 और हमें निकालना है डेल्टा H0। तो वी कैन यूज़ द वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन है log Kp2 बाई Kp1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, दिस बिकम्स log Kp2 है 10 टू द पावर -4, Kp1 है 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू डेल्टा H0 अगर हमें चाहिए किलो जूल के अंदर, तो उसके लिए हम R इसकी वैल्यू भी लेंगे हम इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल। तो ये आ जाएगा 2.303 और जूल में होता है 8.314। सो इन किलो जूल दिस बिकम्स इनटू 10 टू द पावर -3 इनटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। So 1 by T1 is 298 Kelvin minus 1 by T2 is 323 Kelvin। तो ये है हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक अननोन है डेल्टा H0। तो जब सॉल्व करते हैं तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 147.41 किलो जूल पर मोल।
जो है हमारा ऑप्शन सी। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67। इसमें पूछा है conjugate बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड इज। सो हाइड्राजोइक एसिड इज HN3 और किसी भी एसिड के लिए अगर हमें conjugate बेस चाहिए सो वी हैव टू रिमूव वन H+ आयन। सो इससे H+ आयन निकालने से ये बन जाएगा N3- आयन एंड दिस इज azide आयन। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, azide आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। इस क्वेश्चन में हमें गिवन रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट कांस्टेंट दिया है और हमसे पूछा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। सो किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें दिस बिकम्स KEQ इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है 4.2 into 10⁻⁻2 and for the backward reaction the rate constant is 3.36 into 10⁻⁻3. On solving this comes out to be 12.5. So equilibrium constant है 12.5. The answer is option B. Next question is 69. इसमें पूछा है a subshell n equal to 5 l equal to 3 can accommodate. So इसमें azimuthal quantum number l की वैल्यू दी है 3। इसका मतलब इट इज F सबशेल और किसी भी सबशेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू 2 into l plus 1। सो ये बन जाएगा 2 into l की वैल्यू है 3 plus 1 दिस इज इक्वल टू 7। सो एक F सबशेल में देयर आर 7 ऑर्बिटल्स एंड वी नो कि एक ऑर्बिटल में देयर कैन बी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं इन F सबशेल in L equal to 3 वो हो जाएगा 7 orbitals into 2 which is 14. So 14 electrons are possible. So the answer will be option B. Next question is 70. इसमें पूछा है an aqueous solution of ethanol has density 1.025 gram per ml and its molarity is 2m. What is the molality of this solution? So हमें molarity पता है, density पता है and we have to find its molality. सो इसका फॉर्मूला है मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस m इंटू m1 वेर m इज द मोलारिटी एंड m1 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो अगर हम वैल्यूज पुट करें इसके अंदर दिस गिव्स अस मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी है 2m सो 2 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.025 minus m into m1. m is the molarity which is 2 and m1 is the molar mass of solute जो है ethanol C2H5OH and इसका molar mass है 46. तो this is 2 into 46 and on solving this is equal to 2.143. So the answer will be 2.143 mole per kg. Answer is option B. Next question is 71. इसमें पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन और हमें एक गैसियस रिएक्शन गिवन है। तो किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए जो यूनिट ऑफ Kp होता है वो है प्रेशर का यूनिट जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिया है टू द पावर डेल्टा Ng और डेल्टा Ng होता है द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। सो ये बन जाएगा एटमॉस्फेयर टू द पावर प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट्स का सम है 2 + 1 माइनस रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स का सम है 1 + 4। सो दिस इज 3 - 5। सो ये बन जाएगा एटमॉस्फेयर टू द पावर -2। सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 72। तो अगर आप देखिएगा इसमें तो आपसे क्या पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अगर आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है स्टेबिलिटी होती है। तो अगर हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा सबसे अनस्टेबल कौन है 4 नंबर क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन सबसे क्या आएगा कम आएगा। उसके बाद फिर वन आ जाएगा 3 वाला। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा ये देखो आप ये डबल बॉन्ड क्या है यहाँ से रेजोनेंस में और इस रेजोनेंस में आने की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा। तो बताओ हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि ये सबसे अनस्टेबल है। उसके बाद कौन आएगा 3
देन उसके बाद कौन आएगा 2, देन उसके बाद कौन आएगा 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 3 2 1, यानी 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो आपके पास कार्बोकेटाइन दिया हुआ है और कार्बोकेटाइन दिया है, स्टेबिलिटी पूछा है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इफेक्ट अपने पास यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या अपने पास CH3 है, अपने पास ऐसा OCH3 है, अपने पास यहाँ पर रेजोनेंस सिर्फ है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस H काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि रेजोनेंस वाले सबसे पहले क्या होंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो रेजोनेंस वाला अपने पास कौन कौन है, ये 3 है। अब इन तीनों में हम लोग क्या देखेंगे कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, तो ये क्या लगाएगा, ऐसा प्लस M लगाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ से प्लस M लगाएगा, और ये यहाँ से क्या लगाएगा, प्लस H लगाएगा, प्लस H है और प्लस रेजोनेंस है, इसमें सिर्फ प्लस H है, नो रेजोनेंस है, और यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है, तो सबसे ज़्यादा तो किसका हो जाएगा, प्लस M सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप देखोगे OCH3 किस में जुड़ा है, तो OCH3 जुड़ा है, देन उसके बाद आप देखोगे प्लस H, यहाँ प्लस H लगाए, तो यहाँ क्या आपके पास प्लस M, यहाँ क्या आपके पास ऐसा प्लस H, यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस है, और यहाँ पर सिर्फ क्या है आपके पास ऐसा प्लस H है, और आप बोल सकते हो प्लस I भी है, तो प्लस I यहाँ भी है, लेकिन हम लोग कौन सी बात करते हैं, जो डोमिनेट करता है, तो डोमिनेट कौन कर रहा है, यहाँ प्लस M, यहाँ कौन कर रहा है प्लस H, और यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ नो रेजोनेंस है और विथ प्लस H है, तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये वाला, फिर देन ये, देन ये, देन ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 74 में, तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या देखने को मिलता है, यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर भी रेजोनेंस है पूरे रिंग में, लेकिन इसमें एक फैक्टर है, कौन सा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है, एरोमेटिक, जबकि यहाँ पर ये क्या है, अनस्टेबल होगा, क्योंकि ऐसा बेंजीन पे ही आपके क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है एरोमेटिक कंपाउंड, यानी 74 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, तो आप अगर देखोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, जबकि 1 एंड 2 में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो जो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर सेम है, तो आप क्या देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन, तो आप सबसे पहले कंपेरिजन में बोलोगे 3 और 4 में चेक करना पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो आप क्या देख लो, अल्फा हाइड्रोजन, तो आप क्या बोलोगे, इस पे अल्फा है सर, ये भी अल्फा है सर, और ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और जबकि इसमें आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, और ये आपके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप क्या बोलोगे, टोटल अल्फा हाइड्रोजन सर इसके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ से कितने हो जाएंगे बताओ, 2, यहाँ से कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ से कितने हो जाएंगे 2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो है इसके पास कितने हो गए 6, जबकि इस वाले में आप आओगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 1, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आपके पास कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन मोर, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल हो गया 4, देन उसके बाद आ जाएगा आपका 3। अब बचा ये दोनों, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं था, तो फिर क्या देखेंगे आप, अल्फा हाइड्रोजन देखिएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर कितने हैं आपके पास 1, है ना, इस तरीके से आप देख पा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर 2 + 1 कितने हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो इन दोनों में ज़्यादा कौन स्टेबल हो गया, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो आप क्या बोलोगे, फिर कौन आएगा सर 2, और फिर सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा 1, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1, ये जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में है तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको ऑर्डर भी याद रहता है, तो आप ऑर्डर से ही आंसर कर सकते हो सीधा देख के। हम लोग जानते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है, NF3+, देन NR3+, तो आपके पास यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये क्या है NR3+, तो ये सबसे क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप छाड़ भी सकते थे कि यहाँ पर बाकी क्या है प्लस 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 वाले 3 है, तो इनका इससे तो क्या होगा ज़्यादा होगा माइनस आई, और
अब इन दिनों में देखेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो इससे तो बाकी इन दोनों का ज़्यादा होगा। और हम लोग जानते हैं NR3+ और NH3+ में ज़्यादा माइनस आई कौन शो करता है, तो NR3+ शो करता है, यानी NCH3+ जो है, CH3 होल थ्राइस प्लस जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई हो जाएगा। तो 76 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आपसे पूछा है सेलेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आप क्या देखोगे, बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप ऐसा डोनेट करने की टेंडेंसी देखो, है ना। जितना ज़्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर देख लो आप, ठीक है। अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ये होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप देखोगे सर इसके पास क्या है, यहाँ पर ऐसा लोन पेयर है, इसके पास भी ऐसा क्या है, लोन पेयर है, ये अवेलेबल है, कहीं लोग आपका रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं। प्लस यहाँ पर भी आओगे तो यहाँ पर भी आपका कैसा है, ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, जबकि ये किस में जा रहा है, आपका इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। तो ये डीलोकलाइज्ड है, तो इसके डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे क्या होगी, कम होगी। तो दो ऑप्शन है आपके पास 4 वाले, यानी इन्हीं दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इस नाइट्रोजन की डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पे जो लगे हैं ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि यहाँ कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। और इसके पास भी यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन कैसा लगाएगा, ऐसा माइनस आई लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे इस तरीके से खींचेगा। तो आप क्या बोलोगे, माइनस आई लगने की वजह से इसका कम हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसके इसके लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो घट जाए। तो सबसे ज़्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी हो जाएगी, आपकी फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की, उसके बाद किसकी हो जाएगी, थर्ड वाले की, देन किसकी हो जाएगी, सेकंड की, और सबसे लास्ट किसकी हो जाएगी, फोर्थ की। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड देन फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड देन सेकंड देन फोर्थ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो अपना आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से डी आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन 78। तो अगर हम लोग क्वेश्चन 78 में देखेंगे तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, पूछा है के बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि के जो होता है वो अगर ज़्यादा हो, के क्या हो, ज़्यादा हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा उतना के भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी आपको क्या चेक कर लेना है यहाँ पर, एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप उसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए और क्या चेक कीजिए, वहाँ पर उसके स्टेबिलिटी को कंपैरिजन कीजिए। और चूंकि ये देखिए आप सारा बेंजोइक एसिड वाला केस है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान में होगा, SIR इफेक्ट, कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा होगा तो SIR इफेक्ट लगने से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, तो इसमें तो क्या लग रहा है, आप SIR लग रहा है, बिकॉज ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, तो SIR लगने की वजह से इसकी सबसे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा तो किसका होगा, 5 का। अब ग्रुप्स की देख लेते हैं, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, तो NO2 क्या शो करेगा, पैरा पोजीशन पे है, तो -M शो करेगा। और ये यहाँ पर किस पे, आपके मेटा पोजीशन पे, तो सिर्फ क्या लगेगा, इंडक्टिव, तो ये क्या शो करेगा, -I शो करेगा। और ये भी क्या करेगा, ऐसा -I शो करेगा। और यहाँ पर तो कोई ग्रुप लगा हुआ है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तो क्या हो गया आपके पास, 5 का सबसे ज़्यादा हो गया, है ना। उसके बाद आप क्या देखोगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विड्रॉइंग कौन है, 4 है, -M लगा रहा है, तो इसके बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे सर कि विड्रॉइंग किस में लगा है, 2 में तो लगा नहीं है, तो 2 सबसे लास्ट में आएगा, 2 सबसे लास्ट में आएगा, तो 2 सबसे लास्ट में आ गया। तो आंसर यहीं से आपको मिल गया, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 1 और 3 में कंपैरिजन करोगे तो आप जानते हो इसका -I NO2 का क्या होता है, ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर किससे, OCH3 से। इस वजह से आपका आंसर यहाँ से क्या निकल आएगा, 78 का डी आंसर हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा है 2 मोल NaSCO3 दिया है, तो NaSCO3 जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो NaSCO3 रिएक्ट करेगा आपके किसके साथ, और 2 ही मोल दिया है, तो इनमें आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप है, और 3 में से किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ 2 के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। तो कौन से 2 होंगे वो, तो जो आपके पास स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे वही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी रिएक्शन, जैसे आप अगर OH वाला रिएक्शन कराते हैं, सपोज आप फिनॉल से रिएक्शन कराना चाहते हो NaCO3 का, तो अगर आप फिनॉल से रिएक्शन कराना चाहोगे तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपके पास H2CO3 मिलता है ना। और H2CO3 जो होता है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किससे, फिनॉल से। ये वीक एसिड होता है, तो कभी भी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ नहीं जाना होता है, हमेशा कैसे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाते हैं। जबकि आप अगर ऐसा क्या लेते हो, ऐसा COH लेते हो आप, जैसे
कार्बोक्सिलिक एसिड लेते तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप किधर जा रहे होते H2CO3 की तरफ। तो H2CO3 क्या होता है, वीक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसलिए ये प्रोसेस हो पाता। सेम सल्फोनिक एसिड में भी हो पाता। तो हम लोग जानते भी हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ऐसा सल्फोनिक एसिड आता है, देन आपके पास ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड आता है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन किसके साथ दे सकता है, COH के साथ और SO3H के साथ। ये OH के साथ, यानी अगर आप फिनॉल वाले पार्ट को भी कंसिडर करते हो तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं दे सकता है। क्यों, ये वाला रीजन मैंने समझा दिया, क्योंकि वीक एसिड से कहाँ जाओगे आप, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ, और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ से रिएक्शन देगा और यहाँ से रिएक्शन देगा। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऐसा आंसर दिखता है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, देखो यहाँ पर भी सॉल्ट बन गया और यहाँ भी सॉल्ट बन गया, तो ऑप्शन सी जो है अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें पूछा है द लीस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है बहुत बार एग्जाम में। तो अगर आप देखोगे तो क्या पूछा है कि सबसे लीस्ट स्टेबल होता है कौन। तो हम लोग पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन कॉन्फर्मर में कि जो सबसे स्टेबल होता है वो क्या होता है, चेयर फॉर्म। कौन होता है, चेयर फॉर्म। फिर कौन होता है, ट्विस्टेड बोट, है ना। फिर उसके बाद कौन होता है, बोट। और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है अपना हाफ चेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे ही पता है हम लोग को, यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है जो हम लोग सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना हाफ चेयर इज अ राइट आंसर, यानी 80 का आंसर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन। तो आपसे पूछा है कीटोइनॉल, और सारे क्वेश्चन अगर हम लोग देखें ध्यान से तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कीटोन है और कीटोन है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप देख लो कि क्या आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमराइजेशन होगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमराइजेशन नहीं होगा। एल्डिहाइड कीटोन में ढूंढने का सबसे आसान तरीका यही होता है। तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये होना चाहिए आंसर। और यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए तो आपसे पूछा है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें लगाएंगे CIP रूल। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे कि आपके पास प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, क्लोरीन की। फिर इस वाले कार्बन में आपके पास 4 ग्रुप में से एक ये है, एक ये है और एक ये पूरा नीचे वाला ग्रुप है। तो नीचे वाले की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा। तो ये 2, ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। रोटेशन करेंगे 1 से 2, 2 से 3। तो क्या बोलेंगे कौन सी पोजीशन पे आपका, ये 4th पोजीशन जो है, जो 4th ग्रुप है वो कैसे है आपका, ऐसा हॉरिजॉन्टल पे है। और रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग क्या बात करें, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें नीचे वाले में, तो फिर से इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, ऊपर वाले की प्रायोरिटी सेकंड, इसकी प्रायोरिटी थर्ड और इसकी प्रायोरिटी फोर्थ। तो आप क्या बोलोगे यहाँ से कि सर इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से कहाँ जाएंगे 2 और 2 से कहाँ आएंगे 3। तो फिर से आप देखो कहाँ है, ऐसा हॉरिजॉन्टल पे है 4th ग्रुप और क्लॉकवाइज है। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन का चेन है। तो इसलिए आंसर में आपको 2 और 3 नंबर दिखता है। तो 2 का जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो एस आया, और 3 पे जो है वो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा है, एस आया। तो आंसर क्या हो जाएगा 2s एंड 3s। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर 82 का आंसर क्या हो गया आपका, बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा है कि आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी याद होंगी तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। कि आप देखोगे सर यहाँ पर 2 तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है। एक तो डबल बॉन्ड में, लेकिन डबल बॉन्ड में कोई GI शो नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सिमिलर है, प्लस यहाँ भी ग्रुप कैसे हैं, सेम है। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से तो GI शो नहीं कर रहा है। लेकिन क्या है कि ये जो आप देख रहे हो इस पे एक क्या है, H है। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, और इस पे एक H है तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है। तो साइक्लो अल्केन वाले कंडीशन से ये GI शो कर रहा है, तो बोलेंगे ये GI शो कर रहा है। लेकिन बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि बाकी क्यों नहीं हो सकता। आप देखोगे ये क्या है, ये एलीन है। कौन सा एलीन है, इवन एलीन्स है। और हम लोग जानते हैं कि जो इवन एलीन्स होते हैं वो GI शो नहीं करते हैं।
ठीक है, ये जी आई सो नहीं करते हैं, हम लोग जानते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, इस पे तो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, लेकिन उसके बगल वाले पे अगर देखोगे तो दोनों ग्रुप कैसे हो गए, एच और एच हैं, तो ग्रुप सेम है, यहाँ भी ग्रुप सेम है, यहाँ भी ग्रुप सेम है, यहाँ भी ग्रुप सेम है। तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसपे दो कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो आप बोलोगे सर ये भी जी आई, ये साइक्लो अल्केन जी आई सो नहीं कर सकता। आप बोलोगे सर यहाँ तो क्या है, यहाँ तो ऑड एलिन्स है, और हम लोग जानते हैं सर कि ऑड एलिन तो जी आई सो करता है, कर सकता है, ऑड एलिन जी आई सो कर सकता है अगर ग्रुप्स डिफरेंट हो तो आप बोलोगे सर इस कार्बन पे एक H है, एक CH3 है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, सही बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों ग्रुप कैसे हो गए, सेम हो गए। तो ऑड एलिन जी आई सो करता अगर यहाँ पर दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन चूंकि ग्रुप्स यहाँ पे सेम हो गए, इस वजह से ये भी जी आई सो नहीं कर रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए जो है 83 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है और पूछा है आपसे एसर्शन में इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ ऑफ H2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 की बात कर रहा है, ठीक है। और बोलता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाएगी न्यूक्लियाई के बीच में। बिल्कुल सही बात है। क्यों बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो आपके पास क्या होता है, ये इधर 1s है और इधर भी क्या आपके पास 1s है। तो 1s और 1s के जो होते हैं, 1s और आपके पास जो ऐसा 1s वाले हैं, इनके बीच क्या होंगे, दो होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे है। अब इससे क्या बनेंगे, दो तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक क्या बनेगा आपका बॉन्डिंग वाला और एक क्या बन जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग वाला। तो बताओ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं आपके पास, बॉन्डिंग में। और अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो बात तो सही है, असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन क्या लिखता है, द बॉन्डिंग एमओ इज साई ए प्लस साई बी, बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्टिव है तो साई ए प्लस साई बी होना चाहिए। और विच सोज, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इस वजह से ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्ट्रक्टिव, अगर यहाँ कंस्ट्रक्टिव लिखता तो बिल्कुल सही हो जाता, यानी कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, यानी असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84 का ए जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85, इसमें क्या बोल रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है, ठीक है, ये आपके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और पूछ रहा है एलिमेंट ए बी सी डी, है ना, एलिमेंट आपका ए बी सी डी दिया हुआ है, विच एलिमेंट है स्मॉलेस्ट एटम। बहुत आसान है, आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो क्या हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास है, इसके पास, यानी जिसकी साइज क्या होगी एटम की, छोटी होगी, यानी बॉन्ड छोटा होगा, और अगर बॉन्ड छोटा होगा तो क्या होगा आपके पास, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 4 वाला जो है, ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला है। इस वजह से इसका एटम जो होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि जितना छोटा एटम होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बहुत छोटा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4th जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 85 का अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 में। देखते हैं कि आपके पास पूछा है हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा है कि आपके पास दिया हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है और प्लस डोनर एटम भी दिया है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं नीट में वो कैसे होते हैं, आपके पास डायरेक्टली दे देते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ से पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन एच बॉन्डिंग शो करेगा अच्छा, या इफेक्टिव एच बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर डोनर एटम क्या है और आप देखोगे ऐसा हाइड्रोजन किससे जुड़ा है। तो सबसे पहले हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखो कि हाइड्रोजन जो है वो किस एटम से जुड़ा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से। तो आप बोलोगे सर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन है इनमें। तो ऑक्सीजन से जुड़ा है तो आप क्या देखोगे पहले कि ऑक्सीजन वाले केसेस को कंपैरिजन करना है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएगा। अब इसमें कॉमन वाला पार्ट तो हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, डोनर एटम है। और जो डोनर एटम है उसमें क्या देखते हैं, डोनेट करने की टेंडेंसी यानी बेसिक स्ट्रेंथ। तो इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो हम लोग जानते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे। तो आप बोलोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सर किसका होता है ज़्यादा, तो आप बोलोगे कि सर ज़्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की, तो वो तो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन से। तो सबसे पहले तो पी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, क्यू आएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, सबसे पहले तो पी आ गया, फिर कौन आया, क्यू आया। अब इन दोनों में कंपेरिजन करना है,
क्योंकि यहाँ भी नाइट्रोजन है और यहाँ भी नाइट्रोजन है, तो फिर से कौन सा फैक्टर आएगा, यहाँ पर ये लोन पेयर है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो फिर से वही सेम फैक्टर है ऊपर वाला ही, N और O, N और O, तो फिर से वही फंडा आएगा। तो आप क्या बोलोगे, फिर कौन आएगा सर, R, और फिर कौन आएगा S, तो आंसर क्या हो जाएगा P Q R S। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 86 का D जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। आपसे पूछा है फॉर B2H6। हम लोग जानते हैं B2H6 कैसा दिखता है, पढ़ा होगा आपने, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है और इससे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं हमेशा नीट में। तो B2H6 में क्या होता है आपके पास, ऐसा बनाना बॉन्ड बनता है। क्या बनता है आपके पास, ऐसा बनाना बॉन्ड बनता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, इस तरीके से आपके पास बनाना बॉन्ड बनता है। बना लिया। चलिए आपसे पूछा है सबसे पहले ईच बोरोन इज sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही बात है। इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फिर बोलता है 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, सही बात है, एक टर्मिनल एक टर्मिनल एक टर्मिनल एक टर्मिनल, टोटल टर्मिनल कितने हैं 4। फिर बोलता है आर इन सेम प्लेन, ठीक है भाई, सेम प्लेन में, बिल्कुल सही। अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो इसको समझने के लिए, अगर आपको दिक्कत होती है कि यहाँ पर जो होते हैं ये बोरोन है, ये बोरोन है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो ये 4 जो हैं ये सेम प्लेन में, किसके साथ, बोरोन के साथ। लेकिन बाकी जो होते हैं तो वो कैसे होते हैं, ऐसे प्लेन के ऊपर, और बाकी क्या होते हैं, ऐसा प्लेन के नीचे चले जाते हैं। तो आपके पास क्या पूछा है सेकंड में, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरोन एटम आर इन सेम प्लेन, बिल्कुल सही बात है। देखो ये सब किसमें, आपके सेम प्लेन में है, और बट 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम इन डिफरेंट प्लेन, तो ये डिफरेंट प्लेन में है, बिल्कुल सही बात है। यानी आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी सही है। बोला इट हैज़ 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और ये 4 हो गए, बिल्कुल सही बात है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और 2 ब्रिज बॉन्ड्स हैं, एक ब्रिज बॉन्ड ये वाला और एक ब्रिज बॉन्ड ये वाला, तो 2 ब्रिज बॉन्ड्स है, ये भी सही बात है। लेकिन बोल रहा है 8 सिग्मा बॉन्ड्स, बिल्कुल भी नहीं, 8 सिग्मा बॉन्ड्स नहीं। आप भूल से भी ऐसा मत कर लेना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, ये जो आपके ये ब्रिज बॉन्ड्स हैं और ये जो आपके ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि 1 तो सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, लेकिन 4 जो है वो गलत है। और ऐसा एक ही ऑप्शन अपने को दिखता है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो 87 का जो आंसर है वो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल MX3 टी शेप्ड। अब टी शेप्ड बोला है तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा टी शेप्ड है सर, टी शेप्ड कहाँ से मिलता है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम में मिलता है, बना लिया। और टी शेप्ड है, इसका मतलब क्या बोला है कि आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो हम लोग जानते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो एक लोन पेयर यहाँ होगा और एक लोन पेयर यहाँ होगा, तो ही तो ये टी शेप्ड आएगा, तभी तो आपका ये टी शेप्ड बन पाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये टी शेप्ड है तो इसके लिए कितने लोन पेयर हैं आपके पास, 2 लोन पेयर्स होने चाहिए। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज, तो आपसे पूछा है बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बॉन्ड एंगल का, तो आप हमेशा चेक करो पहले हाइब्रिडाइजेशन, सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आप देखो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है अपने पास, मैं ऐसा करता हूँ लिख लेता हूँ। अपने पास H2S है, अपने पास NH3 है, अपने पास BF3 है और अपने पास ऐसा CH4 है। तो आप क्या बोलोगे सर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है सर। इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या है सर, sp3 है सर। लेकिन इसकी हाइब्रिडेशन क्या है सर, sp2 है। और इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल तो किसका होगा, sp2 का, 120 डिग्री, है ना। तो सबसे ज़्यादा तो इसका हो गया, तो नंबर 1 तो अपना यही हो गया। अब बाकी में हाइब्रिडेशन क्या है, सेम है। अब आप देखो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे आपके पास, ऐसा 2, और लोन पेयर आपके पास कितना हो जाएगा, 2। जबकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना है आपके पास, 3, और लोन पेयर कितना होता है, 1। जबकि आप यहाँ देखोगे तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर ही है सिर्फ 4, लोन पेयर तो होता ही नहीं। और हम लोग जानते हैं कि जितना लोन पेयर बढ़ता जाएगा उतना क्या होता जाता है, बॉन्ड एंगल घटता जाएगा, क्योंकि वहाँ रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सबसे नंबर 1 तो BF3 हुआ सर, नंबर 2 कौन हो जाएगा, CH4, नंबर 3 हो जाएगा NH3 एंड नंबर 4 हो जाएगा H2S। तो हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग ढूंढेंगे BF3। तो BF3 किस में है, तीनों ऑप्शन में BF3 है। देन उसके बाद आप ढूंढोगे CH4, 2 ऑप्शन में CH4 है। देन उसके बाद ढूंढोगे आप अमोनिया, तो अमोनिया यहाँ है, तो BF3 पहला, देन CH4 दूसरा, देन NH3 तीसरा, और H2S का सबसे कम बॉन्ड एंगल यहाँ पे हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आपका C निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इन द स्ट्रक्चर ऑफ 4 आइसोप्रोपाइल 2,4 5 2,4,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन
नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप ड्रॉ कर लें। ड्रॉ कैसे करते हैं, बैक साइड से हमेशा हेप्टेन बोला है तो 2 3 4 5 6 7 बना लिया। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बोला है आपके पास, 2 पे 4 पे 5 पे, 2 पे 4 पे 5 पे क्या है, मिथाइल, लगा दिया मिथाइल। फिर बोल रहा है कि बताइए क्या है, उसके बाद 4 पे आइसोप्रोपाइल, तो 4 पे आइसोप्रोपाइल लगा लिया। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताइए 1 डिग्री 2 डिग्री, और गिन लेते हैं कि करके, है ना। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो अपने पास 1 डिग्री वाले कौन कौन से, ये 1 डिग्री है, 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 ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। टोटल 1 डिग्री कितने हो गए, 2 3 5 2 7, तो 7 इंटू 3, हर एक पे 3 हाइड्रोजन है तो 7 इंटू 3 21, यानी पहला तो 1 डिग्री वाला कितना आ गया, 21 आ गया। तो पहले ही 2 ऑप्शन छट गए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी बी और डी में से ढूंढना है। तो अगर मुझे एक भी मिल गया तो मैं आंसर कर लूंगा, लेकिन फिर भी मैं देख लेते हैं हम लोग कि आपसे 2 डिग्री हाइड्रोजन देखोगे तो 2 डिग्री वाला कौन सा कार्बन है, ये 2 डिग्री है आपके पास। और कौन सा 2 डिग्री है बताओ, ये वाला क्या है, 2 डिग्री है। और तो कोई 2 डिग्री मुझे दिख नहीं रहा, तो आप क्या बोलोगे, 2 डिग्री में एक पे कितने हाइड्रोजन है सर, 2, तो 2 पे कितने होंगे, 4, तो फिर आपके पास 4 क्या होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो आंसर मेरा यहीं से निकल चुका है, आंसर बी होगा। लेकिन फिर भी चेक करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप 3 डिग्री की बात करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला कैसा आपका 3 डिग्री है और ये वाला कैसा आपका 3 डिग्री, ये तो 4 डिग्री है ना। तो आपके पास 3 डिग्री एक यहाँ से और एक यहाँ से, और आपके पास 3 डिग्री एक यहाँ पे है, तो टोटल कितने 3 डिग्री हो गए, 3, सब पे एक एक हाइड्रोजन है, तो 1 2 3, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 3, यानी 3 हो जाएंगे आपके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा टाइम खपा सकता है आपका अगर आपने ध्यान नहीं दिया। नॉट, तो क्वेश्चन में आपके क्या पूछ दिया है, यहाँ पर नॉट लिख के पूछ दिया है। तो आप ध्यान रखें जब भी आप मैच करें तो नॉट ढूंढना है आपको कि कौन सही नहीं है। तो पहला बोलता है 1 4 और Q, तो 1 से 1 ये है आपका, 1 से बोला 4, तो 1 से बोला 4, तो 1 से 4 बोला तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल फिनॉल। अब बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं। आप बोलोगे सर ये 1 है ये 2 है, तो 2 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। और 4 से बोला है Q, तो ये इसका कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल। 4 से क्या बोला है आपके पास, Q बोला है, सॉरी एक सेकंड, अगर हम लोग देखें तो 4 से Q बोला है आपके, Q बोला है, तो ये क्या ऑर्थोक्रिसॉल, बिल्कुल सही बात है, इसका नाम क्या होता है, ऑर्थोक्रिसॉल होता है। यानी ये जो है ए जो है बिल्कुल सही है। तो आपसे सही तो पूछा नहीं, आपसे तो पूछा है कि कौन गलत दिया हुआ है। तो अब आते हैं बी पे, बी ऑप्शन में है 2 3 P, तो 2 से पहले मैं 3 मिला लेता हूँ और 3 से पहले मैं P मिला लेता हूँ, फिर देख लेता हूँ। तो बताओ 2 जो है फिनाइल मिथेनॉल, बिल्कुल सही है, ये इसका ब्रांच हो जाएगा। तो ऐसा फिनाइल और मिथेनॉल, और ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल कहलाता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या है अपना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सी में क्या दिया हुआ है। तो सी में दिया है आपके पास 3 1 R, तो 3 को 1 से मिला लेते हैं और उसको मिला लेते हैं R से, किससे मिला लेते हैं, R से। तो अगर आपसे देखोगे 3 1 R, तो 3 1 R में क्या लिखा है, मिथॉक्सी बेंजीन, बिल्कुल भी नहीं, ये मिथॉक्सी बेंजीन थोड़ी ना है, मिथॉक्सी बेंजीन तो ये 4 वाला है। यानी यहीं से अपना आंसर क्या हो गया, निकल गया। ये तो क्या है, ये कैसा आपका फिनाइल मिथानोएट होना चाहिए, ये तो है ना, क्या होना चाहिए, फिनाइल मिथानोएट। लेकिन आंसर में यहाँ पर 1 है, यानी यही आपका गलत दिया हुआ, यानी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको फोर्थ चेक भी नहीं करना है, हालांकि आप चाहो तो मैं चेक करके मैं बता सकता हूँ आपको कि फोर्थ में सही है गलत है। तो आप देखोगे फोर्थ में क्या है, 4 1 S, तो 4 का 1 एंड देन 1 का S आपके पास आएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये कैसा है सर, मिथॉक्सी बेंजीन है, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये आपका बेंजीन है, और इसको एनिसोल बोलते हैं, ये सब जानते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। तो ये आपका हो गया इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 95, जिसका करेक्ट आंसर जो है वो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92। इसमें पूछा है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो हमें 4 एसिड्स दिए हैं और उनका pKa वैल्यू दिया है, एंड वी नो दैट एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए pKa वैल्यू किसी भी एसिड का जितना कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। सो गिवन एसिड्स में सबसे कम pKa वैल्यू वी कैन सी ऑप्शन ए में है 3.77, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सोल्यूबल। तो हमें 4 सॉल्ट दी हैं और उनकी KSP वैल्यूज दी हैं। तो चारों सॉल्ट जो हमें दी हैं, ऑल द सॉल्ट्स आर AB टाइप या 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट। और जब 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट होती है, वी नो
सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ KSP। इसका मतलब जिसका KSP सबसे कम होगा उसका सोल्यूबिलिटी भी सबसे कम होगा इन दिस केस। और गिवन ऑप्शंस में वी कैन सी द लोवेस्ट KSP वैल्यू इज फॉर ऑप्शन डी PTS। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सोल्यूबिलिटी भी लीस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94। इसमें पूछा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 300 इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन फ्लास्क इज ट्रिपल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। सो वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तब जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। सो इस केस में देयर इज नो चेंज, आंसर इज ऑप्शन ए 300, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया है और इक्विलिब्रियम पे हमें प्रोडक्ट NO और रिएक्टेंट N2O4 दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस दी है और हमें Kc निकालना है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NO एट इक्विलिब्रियम टू द पावर इट्स कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय concentration of reactant N2O4 at equilibrium to the power its coefficient 1। तो इसकी जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। सो दिस बिकम्स Kc इज इक्वल टू NO2 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 जो दिया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। And on solving this, this comes out to be 3 into 10 to the power minus 3 mole per liter. So the given answer will be option C. Next question is 96. इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है और हमें देखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा। So we can see that in the product we have 14.6 जूल, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सो फ्रॉम ली चैटर्जी प्रिंसिपल वी नो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो N2O4 will decompose to give NO2। So we can say on increase in temperature it will favor the decomposition of N2O4 which is the backward reaction। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97। इसमें पूछा है इन ब्लीचिंग पाउडर the oxidation number of chlorine atom is। So bleaching powder का chemical formula है CaOCl2। So it contains the ions calcium 2+, it contains OCl minus ion, it contains Cl minus ion। So OCl minus में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 एंड Cl माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ chlorine atom is +1 as well as -1। So the answer is option D, -1 and +1। Next question is 98। इसमें पूछा है which has maximum number of molecules। तो हमें 1 by 1 सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन ए में हमें गिवन है 1.7 ग्राम अमोनिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया हो जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास। सो गिवन मास है 1.7 ग्राम, मोलर मास ऑफ अमोनिया होता है 17 ग्राम पर मोल एंड दिस इज 0.1। सो 0.1 है मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 0.1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na। फिर ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में वी आर गिवन 2 ग्राम हीलियम, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम ये हो जाएगा गिवन मास 2 बाय मोलर मास ऑफ हीलियम 4, ये बन गया 0.5। 0.5 मोल है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स 0.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na। तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑप्शन बी। फिर ऑप्शन सी में हमें गिवन है 4.6 ग्राम NO2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 हो जाएंगे गिवन मास 4.6 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ NO2 इज 46 एंड दिस इज 0.1। सो 0.1 मोल है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 0.1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na। एंड ऑप्शन डी में हमें गिवन है 3.2 ग्राम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ये होंगे गिवन मास 3.2 ग्राम बाय द मोलर मास ऑफ SO2 which is 64, दिस इज 0.05 मोल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स 0.05 इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na। तो इन चारों ऑप्शंस में वी कैन सी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन ऑप्शन बी 2 ग्राम हीलियम। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99। इसमें पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
at STP to completely convert 1.5 moles of sulfur to sulfur dioxide. तो इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी सल्फर रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन गैस O2 टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो हमें दिया है 1.5 मोल ऑफ सल्फर और इसके कोफिशिएंट से वी कैन सी सल्फर के 1 मोल से O2 गैस का 1 मोल चाहिए। सो 1.5 मोल के लिए हमें O2 गैस का 1.5 मोल रिक्वायर्ड है। सो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड STP पे होगा नंबर ऑफ मोल्स 1.5 मोल और 1 मोल का वॉल्यूम होता है एट STP 22.4 लीटर्स। सो दिस इज इक्वल टू 33.6 लीटर्स। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए 33.6। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 100। इसमें पूछा है व्हेन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 180 gram of water, then the mole fraction of glucose is. So glucose is C6H12O6. So इसके number of moles हो जाएंगे. Moles of glucose are given mass which is 18 gram and molar mass of glucose is 180 and this is equal to 1 by 10. So we have 1 by 10 mole of glucose and moles of water H2O ये हो जाएंगे given mass which is 180 gram by the molar mass of water which is 18, this is equal to 10. So we have 10 mole of H2O and 1 by 10 या फिर 0.1 mole of glucose. So now the mole fraction of glucose, इसका formula होगा moles of glucose by total moles. So moles of glucose है 0.1 and total moles है moles of glucose 0.1 plus moles of water which is 10 and this is equal to 0.0099. So the answer is option A. आई होप आपका टेस्ट अच्छा गया होगा और आपको जो भी डाउट्स हुए होंगे वो यहाँ से आपको क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।